Hello students, so welcome to Statisticspedia. Now today's lecture is all based on the application of chi-square test. We have studied about chi-square variate. What do you mean by chi-square? It is a square of your standard normal variate. Then we have studied the several properties of chi-square. Discuss about the goodness of fit test. It is also known as your Pearson's chi-square test. Now why it is known as a Pearson's chi-square test? Because this test, the goodness of fit test, was given by Carl Pearson. So it is one and the same thing. Now there are the several questions that we will discuss today, and we will try to answer that what is the meaning of goodness of fit test. That means what does this test show, when to use this test, how to apply this test on the questions or on the situations, on the different cases, and why to use this test. So in order to solve this what, when, how and why, let's begin with it and let's see to it that how to apply this test on the different cases. Let's start with it. बेसिकली एक प्रैक्टिकल ही एक सिचुएशन ले रहे हैं. Suppose if we have a batch of 10 students, let's say. Yes, and they are learning some of the specific course, some statistics programming course. Now, they are being taught by some of the faculty, and अब क्या हो रहा है कि ये जो faculty हैं, on the basis of the performance of these 10 students, इनके जो क्लास परफॉर्मेंस है उनके अकॉर्डिंग आपके जो सर और मैम है उन्होंने एक एक्सपेक्टेड स्कोर अज्यूम किया कि these 10 students are there and this student will get the highest marks or second student will get this much marks, right? So on the basis of the performance of the students, class performance of the students according to their records, जो फैकल्टी है उन्होंने अज्यूम करा कि इस बच्चे के ये स्कोर आ सकता है. ठीक है, तो ये अजम्पशन, ये जो एक्सपेक्टेड स्कोर है, ये जो एक्सपेक्टेड डेटा है, ये किसके बेसिस पे हुआ? परफॉर्मेंस के बेसिस पे. ठीक है, स्टूडेंट ने कैसा क्लास परफॉर्मेंस किया या जो टेस्ट का जो रिकॉर्ड था उसके बेसिस पे हमने ये अज्यूम किया. यस, अब ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनका एक्चुअल में एग्जाम हुआ, एक्चुअल में टेस्ट हुआ, स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामिंग एग्जाम. तो एक्चुअल में जब टेस्ट हुआ तो इसका मतलब इनके पास एक एक्चुअल डेटा आया. उस एक्चुअल डेटा को हमने बोला ऑब्जर्व्ड स्कोर. यस, हाउ दिस ऑब्जर्व्ड स्कोर इज बीइंग ऑब्टेन्ड बाय द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ दैट 10 स्टूडेंट्स. सो व्हाट वी विल से नाउ हियर, व्हाट वी वांट टू नो हियर, वी वांट टू फाइंड द डिफरेंस between the expected score and observed score. Obviously जो हमने टीचर ने जो अज्यूम किया है, जो एक्सपेक्ट किया है और जो एक्चुअल बच्चा परफॉर्म करके आया है उसमें एक डाइवर्जेंस होगा, उसमें एक डिफरेंस होगा. तो उस डिफरेंस को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं? गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट. नाउ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट मतलब क्या होता है? गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ वेल, हाउ क्लोज दिस थियोरिटिकल और दिस थ्योरी दे फिट्स टू एन ऑब्जर्व्ड सेट ऑफ डेटा. मतलब कि कितने अच्छे से, कितने अप्रोप्रिएटली, या इनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है कि कम है. द डिफरेंस इज क्लोज to each other or the difference is very far. So here we want to find that how well or how close the theory fits to the actual set of data or observed set of data. So basically ये जो आप actual या observed frequency बोलते हैं, ये आप sample collect करते हैं और sample के basis पे जब आप actually में experiment को perform करते हैं और frequencies note down करते हैं, that set of frequencies are regarded or referred as an observed set of frequencies. Yes. So let's find it out. Let's answer the question basically. कि what does it mean? What do you mean by goodness of fit test, or what do you mean by Pearson's chi-square test? So, it is a statistical hypothesis test
which is used to examine the difference between the theory and experiment. Basically, we want to find the divergence, the difference between the theory and experiment. That is to find how well or appropriately the theoretical distribution to fit with the observed set of data. तो हम बेसिकली क्या जानना चाहते हैं कि आपका जो थ्योरी है, जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है, जैसे बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल, तो ये डिस्ट्रीब्यूशंस कितने क्लोज हैं और कितने अच्छे से फिट हो रहे हैं टू द ऑब्जर्व्ड सेट ऑफ डेटा. ऑब्जर्व्ड सेट ऑफ डेटा आर दोज डेटा विच आर बीइंग obtained फ्रॉम द सैंपल. जब आप एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और मेजरमेंट्स लेते हैं तो वो हम कैसे लेते हैं? सैंपल की हेल्प से. So these are those. Yes, so I hope with this example now you are very much clear कि goodness of fit test theory और experiment के बीच में difference निकालता है, ये जानता है कि इनके बीच का difference ज़्यादा है कि कम है. Yes, so this is an answer. What does it mean? What does it show? Now the next question is when to use this test. हमें इस टेस्ट को कब यूज करना चाहिए? तो जब आपका जो डेटा है वो कैटेगोरिकल है या नॉमिनल डेटा है. कैटेगोरिकल और नॉमिनल डेटा मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव द स्टूडेंट्स इन द क्लास. यस, अब आप इसमें आपने दो कैटेगरीज बना दी, दो क्लासेस में आपने इसको ब्रेक कर दिया. एक तो लेफ्ट हैंडेड, एक राइट हैंडेड. So this is a categorical data. Suppose if we have candies and these candies को हमने categorize कर दिया according to their flavors, like pineapple flavor है, we have an apple flavor, we have a lime flavor, we have an orange flavor. Yes, so these is a categorical data. Suppose gender है तो male and female. Yes, so that is when to use the goodness of fit test. It can be only be applied when the data is categorical or nominal data. Now the next question is how to apply this test, goodness of fit test. How to calculate this test? What are the steps for calculating the goodness of fit test? So let's see first what we need to do. First I will show it over here. सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जब आप गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, यू नीड टू कलेक्ट अ रैंडम सैंपल. रैंडम क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है वो, इनका जो नेचर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तो आप एक रैंडम सैंपल ऑब्जर्व करेंगे, मतलब आप एक्चुअली में फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आएंगे. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज मतलब कि जब आप एक्चुअली में एक सैंपल कलेक्ट करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो बाय दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जो डेटा आया, जो फ्रीक्वेंसीज आई, दे आर रिगार्डेड एज एन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज. तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है. नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? टू state the null hypothesis. Now since you are watching this video, so I hope you are familiar with all the terms of hypothesis, null hypothesis, alternate hypothesis. Now what do you mean by null? Briefly I would like to tell you that what do you mean by null. Null मतलब होता है neutral. null मतलब होता है unbiased. Yes, unbiased means जहाँ पे इक्वालिटी हो, जहाँ पे कोई पार्शियलिटी ना हो. सपोज अगर हम दो क्लास का एवरेज ले रहे हैं तो हम नल हाइपोथेसिस क्या बोलेंगे कि उनका जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो कैसा है? इक्वल है. Yes, this is null hypothesis. And what do you mean by alternative hypothesis? Hypothesis मतलब इसका complementary hypothesis. तो if I am saying कि दो क्लासेस का जो परफॉर्मेंस है, एवरेज परफॉर्मेंस है, वो इक्वल है, तो ऑल्टरनेटिव क्या होगा? ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा. ऑल्टरनेटिव विद स्टेट कि नहीं, वो इक्वल नहीं है, या फिर कि एवरेज परफॉर्मेंस सेक्शन 1 का ग्रेटर है या एवरेज परफॉर्मेंस सेक्शन 2 का ग्रेटर है. तो जो कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस होता है टू द नल हाइपोथेसिस, दैट इज नोन एज योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. लेट्स सी टू इट कि सबसे पहला स्टेप क्या है. आपने एक सैंपल कलेक्ट किया है, उससे आपको n ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज मिल गई या वैल्यूज मिल गई. Then second step is to state the null hypothesis, neutral hypothesis which is denoted by H0, and उसका complementary hypothesis which is known as an alternative hypothesis which is denoted by H1. Now जब आपके पास ये सारा
आपने परफॉर्म कर लिया, उसके बाद हम टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई करेंगे, मतलब काई स्क्वायर टेस्ट को हम अप्लाई करेंगे. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? summation OI minus CI square divided by EI. Now what do you mean by OI? OI मतलब होता है आपका observed frequency. Yes, तो observed frequency मतलब एक्चुअली में जब आपने परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट को सैंपल लिया था, दैट इज एन observed frequency. And what do you mean by expected frequency? EI means expected frequency. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि जब आपने कोई परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट या पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे एक हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसी जो आपने माना है कि ऐसा हो सकता है, जो आपने एक्सपेक्ट किया है, दैट इज नोन एज एन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. सो this is a formula, and to apply this test expected frequency must be greater than 5. Now this is one of the condition for goodness of fit test कि आपका जो भी expected frequency आ रहा है it must be greater than 5. Now once you have obtained this value, तो obviously ये जो आपकी value है वो calculated value है. Yes, आपने इसको calculate करके value निकाला है. उसके बाद हम टेबल काई स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं, टैबुलेटेड वैल्यूज, वो हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टेबल. फॉर हाउ मच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? फॉर n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. नाउ अभी इसका नेक्स्ट में, अभी हम व्हेन वी विल सी द एग्जांपल फॉर दिस काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, आई वुड टेल यू कि n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों होता है. यू ऑल आर फेमिलियर विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने इंडिपेंडेंट वेरिएट्स हैं, मतलब हाउ -1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे टेबल में हम वैल्यू देखेंगे फॉर द चोजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है या 1% है. तो अगर आपकी वैल्यू लेस आती है, कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टैबुलेटेड वैल्यू से लेस आती है, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, और अगर वैल्यू ज्यादा आती है तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे. सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस entire part in this calculation onto a question. Now suppose this is a question that the number of the scooter accidents per month was given to you. Use the test to determine if the frequencies are in agreement with the belief that accident conditions were same during the 10-month period. तो यहाँ पे क्या है कि आपके जो स्कूटर एक्सीडेंट्स हैं पर मंथ के, तो वो आपको डेटा दिया हुआ है, 10 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है, और आपसे बोला जा रहा है कि आप टेस्ट को अप्लाई करिए और देखिए ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो फिट होंगी. यस, फ्रीक्वेंसीज फिट होंगी. आर इन द एग्रीमेंट मतलब फिट होंगी विद द एक्सीडेंट कंडीशंस वर सेम ड्यूरिंग द 10 मंथ. मतलब हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने एक्सपेक्ट किया है कि ये फ्रीक्वेंसीज, ये जो डेटा है विल रिमेन सेम. जब आप 10 महीने बाद देखेंगे तो ये जो एक्सीडेंटल कंडीशंस है वो सेम रहेंगी. तो हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे बिकॉज इट इज रिटन द कंडीशंस विल रिमेन सेम, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा. दैट मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि वी वुड अज्यूम that observed frequencies, they are in agreement with the expected frequencies. Yes, or in other words the accidents are uniformly distributed. Because क्या बोला इसने कि जो now how to find the expected value. Expected value हम कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे total number of accidents कितने हुए थे, तो हमने इन सबको ऐड कर लिया, तो कितने accidents हुए थे? 100 हुए थे. And now we would expect, we would take the mean. Expectation means expected frequencies means here we would take the mean. तो जब आप mean लोगे तो 100 को आपने डिवाइड करा 10 से, तो 10 एक्सीडेंट्स पर मंथ हम अज्यूम करके चल रहे हैं. दिस इज आवर एक्सपेक्टेड स्कोर. यस, वंस वी हैव कंप्यूटेड द मीन. तो ये जो आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं जो एक्चुअली में एक्सीडेंट्स हुए हैं हर महीने, और तो ये हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखा. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर महीने 10 एक्सीडेंट्स होंगे, बिकॉज हमने यहाँ पे मीन को कंप्यूट कर लिया. नाउ हियर वी वांट टू फाइंड इट आउट कि हाउ क्लोज दिस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज टू द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, हाउ क्लोज द थ्योरी फिट्स टू द observed frequencies. So for that we have applied the test statistic and we have calculated the value of chi-square with the help of this formula. तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर करना है, एंड देन दिस स्क्वायर्ड वैल्यूज आर बीइंग डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यूज. तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई. तो आपका काई स्क्वायर की वैल्यूज, वंस यू विल ऐड दिस,
then summation of O minus E का square divided by E कितना आ रहा है 26.6 once you will add these values. So calculated value हो गई आपकी 26.6. Now for this test why we are saying कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n-1 होगी, तो यहाँ पे इस केस में 10-1 होगी. See, what do you mean by डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब होता है n-k. ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दैट. और what we can say, the number of the independent variables, मतलब कि कितनी वैल्यूज की आपको जरूरत है, कितने इंडिपेंडेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग रिक्वायर्ड. तो सपोज यहाँ पे इसका जो सम है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का वो कितना है 100 है. सो हियर वी विल से कि अगर आपको 9 वैल्यूज पता होंगी, इफ 9 वैल्यूज आर नोन टू यू, तो बिकॉज द सम मस्ट बी इक्वल टू 100, तो 10th वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी. तो कितनी वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए जिसकी जरूरत है हमें, तो कितनी वैल्यूज होनी चाहिए 9 वैल्यूज होनी चाहिए आपके पास. ठीक है, इफ 9 वैल्यूज आर बीइंग इंडिपेंडेंटली दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन टू यू, तो जो लास्ट वैल्यू है वो आप ऑटोमेटिकली फाइंड कर लोगे क्योंकि इसका सम होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू 100. तो 100 में से वंस वी विल सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज देन वी वुड गेट द 10th वैल्यू. सो दिस इज अ वन वे टू फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इफ वी हैव n, तो n यहाँ पे क्या है 10 है, 10 में से आपने एक को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब 9 इंडिपेंडेंट वैल्यूज मस्ट बी नोन टू अस. नाउ फ्रॉम द टेबल फॉर दिस 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपके पास क्या आया कि 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपने 5% पे tabulated value निकाला and which is equal to 16.92. Now after all these computations, now we reach to the decision rule. अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो calculated value है वो greater है tabulated value से. अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर है तो इसका मतलब कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे. नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि एक्सीडेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. इसका मतलब कि जो आपने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज देखी थी वो सेम नहीं होंगी, 10 महीने बाद भी वो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच नहीं करेंगे. मतलब ये जो फिट है दैट इज अ पुअर फिट, दैट इज अ बैड फिट. इसका मतलब कि जो डाइवर्जेंस है आपके थ्योरी और एक्सपेरिमेंट का, इट इज टू फार. बहुत ज्यादा डिफरेंस है थ्योरी और एक्सपेरिमेंट में. यस, तो दैट इज व्हाई हम रिजेक्ट कर रहे हैं अपने नल हाइपोथेसिस को. और वी कैन से द एक्सीडेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली. दैट व्हाई टू यूज दिस टेस्ट, व्हाई, व्हाट इज द नीड टू यूज दिस टेस्ट. तो नीड तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमें थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बीच के डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें ये कंक्लूड करना है कि आपका जो फिट है वो गुड है कि पुअर है. यस, अगर आपका फिट गुड है तो इसका मतलब आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट डेटा है. आपका जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो डाइवर्जेंस है बिटवीन द थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट इज वेरी वेरी लेस. बट अगर आपका कंक्लूजन या कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टैबुलेटेड वैल्यू से, तो इसका मतलब आपका जो फिट है दैट इज अ बैड फिट, दैट इज अ पुअर फिट. और आपका डेटा जो है इट इज नॉट एडिक्वेट, इट इज नॉट सफिशिएंट, इट डज नॉट फिट टू द सैम्पल डेटा और द ऑब्जर्व सेट ऑफ डेटा. या आप ये भी कह सकते हो कि थ्योरी और एक्सपेरिमेंट का जो डिफरेंस है दैट इज टू फार टू ईच अदर. यस, सो व्हाई स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या होता है, कब हम इसको यूज करते हैं, कैसे हम इसको यूज करते हैं, और व्हाई द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1 एंड व्हाट इज बेसिकली द फाइनल रिजल्ट और कंक्लूजन फॉर दिस टेस्ट. नाउ वी हैव द सेकंड टेस्ट, दैट इज व्हाट, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स. Independence of attributes. Now this is in second application for chi-square test. Now basically क्या है कि
इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट इज नथिंग बट इट इज सेम एज अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, क्योंकि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी आप कब यूज कर रहे हो कि जब आपका जो डेटा है वो कैटेगोरिकल है, यस, और नॉमिनल है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी. जैसे मेल एंड फीमेल आपने जेंडर को कैटेगराइज कर दिया, यस, ऑनेस्टी, ब्यूटी. सो दिस इज ओनली तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का ही एक, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट ओनली, जो इसका सेकेंड एप्लीकेशन है, जहां पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वेदर आपके एट्रीब्यूट्स के बीच का एसोसिएशन इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है. ठीक है, कि वेदर द एट्रीब्यूट सेल्स मैनेजर है, ही वांट टू नो कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है या जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है वो डिपेंड कर रही है ज्योग्राफिकल एरिया पे या नहीं. यस, सो इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिफरेंसेस depends upon the geographical area or not. प्रोडक्ट को लेकर कोई भी, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं? इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स हम फाइंड आउट करते हैं. तो उसके लिए क्या होता है, आप क्या करते हैं उसके लिए, जो एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स से A1 A2 AR B1 B2 BS, these are the attributes. When these attributes they are expressed in a table, अब table का order क्या होगा? R by S, because we have R attributes and S attributes. So this table, it is known as a contingency table. Yes, तो ये बिल्कुल goodness of fit test का ही है ये independence of attributes. It is a form, it is a kind of a goodness of fit test only, but only thing is कि यहाँ आप attributes को एक table में स्पेसिफाई कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पे आपके पास सारी जॉइंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं. जॉइंट फ्रीक्वेंसीज मतलब कि जो एट्रीब्यूट्स लाइक A1 B1, राइट, then A2 A1 B2 and so on. Now here we have the joint frequencies and here we have the totals, marginal totals. Yes, so this is known as a contingency table of the order R by S. So today we have discussed two applications. One is the Pearson's chi-square test, goodness of fit test, and other one is the independence of an attribute, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि attributes independent है या dependent है, or in other words the nature of association between the two qualitative characteristic. Yes, so that's it for today, and in the next upcoming lecture we will discuss about the third application of chi-square test. So thank you, students.